نومبر دکان ایونٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ایگزیبیشن کی ہے، اس میں اسمال بزنس وومین جو ہے نا، ان کو پروموٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ NCCIA کے چیئرمین سرفراز چودھری صاحب بڑے دماغ آدمی ہیں۔ ڈائریکٹر سرفراز چودھری جو کہ میرے کزن بھی ہیں، ورکنگ ان کی بولتی ہے، پورے پاکستان میں بولتی ہے، آل ورلڈ میں بولتی ہے۔ اس میں بہت سے یوٹیوبر جو ہیں، خاص طور پہ یہ ڈکی بائی والا معاملہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے نوٹس کیا ہے، یہ اقرا کنول ہیں اور ندیم نانی والا ہے۔ اچھا میم، مجھے ایک بات بتائیں، ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑے خطرناک سی فیملی ہے آپ لوگوں کی، آپ بھی اسی طرح ہی ہیں یا صرف سرفراز؟ الحمدللہ ڈرتے تو ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں۔ ان کو جس نے بھی ہٹایا، دیکھیں انہوں نے ڈکی سے بہت بڑی ریکوری کی ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، مزید فردر بھی انہوں نے ریکوریز کرنی تھی، بڑا پیسہ آنا تھا جی، 1 ارب تک پیسہ آنا تھا۔ ایز اے سسٹر آپ کو افسوس ہوئے اس بات کا؟ بہت دلی دکھ ہے، اور اس طرح کا بلنٹ آفیسر کوئی آتا ہے۔ میم نہ انہوں نے رشوت لی، نہ وہ کسی سے رکے، یہ کیا چکر ہے؟ پیسہ تو سب کو اچھا لگتا ہے، چودھری صاحب کو نہیں اچھا لگتا؟ نہیں جی، وہ ہماری فیملی ایسی ہے ہی نہیں۔ تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ جو آپ نے سٹالز لگائیں، کیا یہ صرف بڑے بڑے آؤٹ لیٹ والوں کو ہی آپ نے دیے ہیں، یا کسی غریب کو بھی آپ لوگ موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھے اور وہ بھی کچھ کر سکے؟ ایسا بھی ہے؟ اگر آپ ہمارے سٹالز پہ دیکھیں گے نا، ہمارے سارے چھوٹے ہی سٹال ہیں، بڑے حلال طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے اپنے ذرائع معاش کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو یا ایسے لوگوں کو آپ کیا میسیج دیں گی جو یعنی معاشرے میں بے حیائی الگ پھیلا رہی ہیں اور چند ٹکوں کے لیے یعنی اپنے آپ کو خراب کر رہی ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ ان کو ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور میں اس بات پہ اپنے پیارے نبی بینگ اے مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کوٹیشن کروں گی، کوٹ کروں گی کہ جس کے پاس حیا نہیں تو ہمارے نبی نے کہہ دیا وہ جو مرضی کرے۔ آپ کو چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑی بہنیں بھی دیکھتے ہیں، ماں باپ بھی دیکھتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ دیکھیں، سم ٹائم ہم ایسی اپلیکیشن کھولتے ہیں جس میں ایڈ بن کے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں، آپ اس چیز کا خاتمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی وائس پریزیڈنٹ وومن ونگز کی روبینہ ظفر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، یہ نومبر دکان ایونٹ کے حوالے سے انہوں نے جو ایگزیبیشن کی ہے، اس میں اسمال بزنس وومین جو ہے نا، ان کو پروموٹ کرنے کا موقع ملا ہے، اور ان کے بزنس گرو ہوتے ہیں تو خواتین آگے بڑھتی ہیں۔ اس میں جو خواتین جو بچیاں اسٹوڈنٹ بچیاں ہیں، خاص طور پہ وہ جب بزنس میں آتی ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا بات کریں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی، آپ وومن ونگز کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ NCCIA کے چیئرمین سرفراز چودھری صاحب بڑے دماغ آدمی ہیں۔ ڈائریکٹر سرفراز چودھری جو کہ میرے کزن بھی ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے اتنے دبنگ وہ آفیسر ہیں، تھے بھی، ورکنگ ان کی بولتی ہے، پورے پاکستان میں بولتی ہے، آل ورلڈ میں بولتی ہے۔ جب بھی کوئی غلط کام کسی نے شروع کیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بہت سے یوٹیوبر جو ہیں، خاص طور پہ یہ ڈکی بائی والا معاملہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے نوٹس کیا ہے، یہ اقرا کنول ہیں اور ندیم نانی والا ہے، تو باقی جو انہوں نے ہاتھ ڈالنا تھا ابھی جنت مرزا پہ اور متیرہ پہ، تو اس وجہ سے ان کو سٹاپ کر دیا گیا۔ ان کو جس طرح روکا گیا ہے نا، یہ انتہائی مذمت والی بات ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اس طرح یا تو اس کو معطل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا میڈم، یوٹیوبر تو بڑے شریف سے بندے ہوتے ہیں، نہ لڑائی جھگڑا نہ کچھ اور، اب یوٹیوبر پہ کیوں؟ اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا۔ دیکھیں، یوٹیوبر ہوں یا پھر کوئی بھی جو برے کام میں ملوث ہوں، تو ہم تو سب کے خلاف ہیں نا، کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس چیز پر ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کو ان کا آنے والا
वाला टाइम, उनका फ्यूचर जो है ना, अगर ऐसी चीज़ों पे लगाया जाएगा, हमारे पाकिस्तान के, हमारी कौम के बच्चे जो हैं ना, वो अगर यूट्यूबर बन जाएंगे या फिर वो अपनी स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको ये होगा कि ये बहुत शॉर्ट वे है हमारे अर्निंग करने के लिए, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर अपना उनको फ्यूचर जो है इसी में नज़र आता है, तो वो ज़ाहिरी बात है बच्चे जो है ना वो तालीम हासिल नहीं कर पाए। अच्छा मैम, मुझे एक बात बताएं, वैसे तो आप माशाल्लाह बड़े ख़तरनाक सी फैमिली है आप लोगों की, आप भी उसी तरह ही हैं या सिर्फ सरफराज? अल्हम्दुलिल्लाह, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है जी। और जैसे उन्होंने बोला था कि सब पढ़े जाएंगे ना, तो देखे ना, ये उनकी एक मैं कहती हूँ उनको इजाज़त देनी चाहिए। ये जिसने भी रुकावट डाली है उनको इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो इतना अच्छा काम कर रहे थे और उनको वो काम करना चाहिए। अच्छा जी, ये NCCIA के जो डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी साहब, ये उनकी कज़न है, उनको जिसने भी हटाया, देखिए उन्होंने डकी से बहुत बड़ी रिकवरी की है और ये बड़ी अच्छी बात है, मज़ीद फर्दर भी उन्होंने रिकवरीज करनी थी, बड़ा पैसा आना था जी, 1 अरब तक, 1 अरब तक पैसा आना था। और ये देखें, हमारे जो पाकिस्तान है, हमें बहुत ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है, और जब यहाँ पे कोई ऑनेस्ट तरीके से काम करता है ना, तो उसकी जब ये हालत कर दी जाएगी तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। एज ए सिस्टर आपको अफसोस हुआ इस बात का? कितना बहुत काम दुख, करते हुए रोका गया? दिली दुख है। और इस तरह का ब्लंट ऑफिसर कोई आता है, और जब कोई ऐसा आ जाए जिसमें इतनी ज़रूरत हो कि वो बुराई को रोक सके, तो उनको ज़रूर काम करने की इजाज़त। आपको क्या लगता है जो उनकी जगह पे नेक्स्ट ऑफिसर आए हैं वो इन चीज़ों पे वर्किंग करेंगे? प्लेटफॉर्म तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ी ऑनर है उनके लिए जो उन्होंने स्टैंड लिया है। ये तो हमारे आने वाले बच्चे भी याद रखेंगे इस चीज़ को। मैम, ना उन्होंने रिश्वत ली, ना वो किसी से रुके, ये क्या चक्कर है? पैसा तो सबको अच्छा लगता है, चौधरी साहब को नहीं अच्छा लगता? नहीं जी, वो हमारी फैमिली ऐसी है ही नहीं। तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको वैसे विरासती तौर पे बहुत कुछ दिया हुआ, इसलिए उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो कोई रिश्वत लें, या वो ऐसे काम नहीं करते। ये रिश्वतें वो खुद भी ले सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन फेज़ 4 अरीना सिनेमा के सामने। यहाँ पे फैमिली फेस्टा 2025 के हवाले से हमारी एक बहन है जिन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक छोटे कारोबार करने वालों को इम्पावर करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के मौके देने के हवाले से एक यहाँ पे सेमिनार मुनक्कद किया है, और इसमें मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए जिसमें मुख्तलिफ फैमिलीज के लोग जो कि कोई काम करना चाहते हैं, कोई अपने बेटे के साथ आ रहा है, कोई अपनी यानी हस्बैंड के साथ है, कई औरतें जो बेचारी इंडिपेंडेंट हैं वो भी यहाँ पे आके कारोबार करने की कोशिश करने की एक बड़ी अच्छी काविश की गई है। आए मैं जानता हूँ इसी हवाले से मैडम सनोबर से कि वो हमें बताएं कि इनका इसमें मकसद क्या है और इसके पीछे के अगरा को मकासद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके माइंड में ये इतना अच्छा जो एक प्लान है ये किस तरह से आया? आपने से प्लान की बात की है, ये प्लान एकदम से नहीं आता। ये प्लान एक तरबियत होती है, जो एक मुआशरे की तरबियत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके घर की तरबियत, आपके माँ बाप की तरबियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सारा गिफ्ट अपने पेरेंट्स की तरफ से मिला है। और ये जो सब आप इवेंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरी बचपन से एक छोटी छोटी हेल्प करने की आदत थी, और मेरे दिल में जो ये आदत थी मैंने इसको निचोड़ किया वक्त के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे 9 अगस्त को RWCCI ग्रोइंग वुमेन हर लेगेसी के साथ, जैसे मेरा नाम है स्नोबॉल दुकान इवेंट्स की CEO हूँ मैं, हम चारों पार्टनर्स ने मिलके पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट किया और एक ब्रेक डाउन किया फुटफॉल का और मोहब्बतों का पैगाम दिया। और हम लोगों ने, अब बिलीव करें कि हम लोगों ने अपने तौर पे, जैसे मेरी एक कंपनी है, मिनी सी कंपनी है आइकनिक फोटोग्राफी, तो उसने पूरी कवरेज जो की मेडिसिन केयर मॉल में बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री की। और जितनी भी पोस्ट होंगी, जैसे आपको पता है ग्राफिक का एक बहुत बड़ा काम होता है, तो मैंने पाकिस्तान डे पे अपने पाकिस्तान को एक छोटा सा वो भी गिफ्ट दिया। और हमने मिल के दिन रात एक किया। मेरी वहाँ पे तरबियत हो चुकी थी, मेरे साथ सीनियर थे, और फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ लोगों को बहुत उम्मीदें हैं,
हर कोई अपने रिस्क के लिए कोशिश करता है, हमने भी की, हम करते हैं, लेकिन मेरी जो कोशिश है उन माँ बहन भाइयों के साथ है जिनको पाथ नहीं मिलता। अच्छा, अनफॉर्चुनेट। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने स्टॉल्स लगाए, क्या ये सिर्फ बड़े बड़े आउटलेट वालों को ही आपने दिए हैं या किसी गरीब को भी आप लोग मौका देते हैं कि वो भी आगे बढ़े और वो भी कुछ कर सके, ऐसा भी है? अगर आप हमारे स्टॉल्स पे देखेंगे ना, हमारे सारे छोटे ही स्टॉल है। हमारा कोई स्टॉल भी ब्रांड नहीं है, लेकिन ये ब्रांड बनेगा इंशाल्लाह। बट हमारे साथ जो स्पॉन्सर में जो हमने एक ऑफर की थी अपने ही वेंडर को, लिटिल सी अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा के और उनकी टेबलों को बढ़ा दिया गया और उनको हमने सोशलाइज किया, हर जगह टैग किया और उनकी ऑनर को जहाँ फैमिली फेस्टा गया वहाँ हमारे स्मॉल वेंडर्स के जो एज आ स्पॉन्सरशिप गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको बहुत अच्छा, सिर्फ हमारे टैग लगने की देर थी उनका हमारे साथ, उनको काम मिलना शुरू हो गया। उसको बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऑफर्स करने लग गए हैं माशाल्लाह कि आप हमें हमारे साथ काम करें और प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए, जबकि इवेंट आज था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात और भी इजाफा कीजिएगा कि बाज लोग बहुत घबराते हैं ना ऐसी जगहों पे आने से, फैमिलीज भी घबराती हैं और जो लोग इंस्टॉल लगाना चाहते हैं, आपको पता हर एक को इस तरह अवेयरनेस नहीं है, उनको आप जरा बताएं कि क्या इसमें कोई बहुत मुश्किलात होती हैं या इजी वे है, इसका जरा बताएं। जो लगाना चाहते हैं ना, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो इलामा इकबाल का एक शेर मैं नजर करूंगी सबके, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर जब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस को ही नहीं पहचानोगे तो आप एम्पावर कैसे होंगे? तो सबसे पहले आप अपनी जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अमालों का दारोमदार नियत पर है, अपनी नियत अच्छी कर लें, आपके लिए रास्ते ऐसे रब खोलता है कि आज जहाँ स्पॉन्सर हमारे छोटे स्पॉन्सर थे जो हमारे अपने ही वेंडर्स थे, तो आज आप देखेंगे कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ स्पॉन्सरशिप में अल्हम्दुलिल्लाह बिग ब्रांड्स आके बैठ गए। मुझे एक छोटी सी बात मेरी बहन बताएं कि जो लोग मीडिया के ऊपर बैठ के वल्गैरिटी फैला के पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, मैंने यहाँ पे देखा हमारी कई माएँ बहनें बेटियां इधर बैठी हुई हैं और बड़े हलाल तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से अपने ज़राए मुआश की कोशिश कर रही हैं। ऐसी लड़कियों को या ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगी जो यानी मुआशरे में बेहयाई अलग फैला रही हैं और चंद टकों के लिए यानी अपने आप को खराब कर रही हैं? मैं ये कहूँगी कि उनको हदायत की दुआ मांगनी चाहिए और मैं इस बात पे अपने प्यारे नबी बीइंग अ मुस्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कोटेशन करूँगी, कोड करूँगी कि जिसके पास हया नहीं तो हमारे नबी ने कह दिया वो जो मर्जी करे। तो प्लीज अगर जो ऐसा काम कर रहा है, खुदा का वास्ता अगर आप नहीं समझते तो चार दीवारी में कर लीजिए, पब्लिक नहीं करें। आपको छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़ी बहनें भी देखती हैं, माँ बाप भी देखते हैं, और अगर ऐसा नहीं है कि वो ना देखे, सम टाइम हम ऐसी एप्लीकेशन खोलते हैं जिसमें ऐड बन के वो हमारे सामने आ जाती है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं, आप इस चीज़ का खात्मा करें, क्योंकि देखिए ये बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं इसकी मुकम्मल मजम्मत करती हूँ। बहुत शुक्रिया जी, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक आपके इस कारोबार में ये जो आप अच्छाई के काम करें इसमें बरकत डाले और अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो सेमिनार में हम यहाँ पे आए उस हवाले से मैडम सनोबर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव वे में ये बताया कि जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं हम उनको आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने उन बच्चियों उन माओ बहनों को भी पैगाम दिया जो हम माशरे में बुराई फैला के पैसा कमाने की कोशिश कर रही है कि खुदारा अपनी नस्ल को खुद को तबाह ना करो और हलाल जो ज़राए अल्लाह ने दिए हुए उनके ज़रिए अपने आप को और अपने माशरे को मजबूत करो। मैं इसी के साथ आपका मेज़बान राजा इमरान फीक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।